So, very good afternoon to all my dear friends. Hello, everyone. Am I audible and visible? Please let me know. Am I audible and visible? Please let me know. Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Sanskar, Chandu, Sanjog, Shrenik, Omkar, Archit, हर्षित, समीक्षा, सान्या, ओमकार, क्या बात है, संस्कृति, राकेश, ऋतिक, हेलो। यस, अभी 12th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। सो ऑफिशियली टुडे आई थिंक आई शुड वेलकम यू ऑल इन दिस कोर्स ऑफ सीए फाउंडेशन। गुड आफ्टरनून। Okay. So I think I'm audible as well as visible. Thank you so much, Abhishek. Thank you. Jai Jinein Surana. Thank you so much, Rakesh. Thank you. So yes, let us officially begin with the journey of CA today. So I think you all have watched my yesterday's lecture. कल का एक्चुअली लेक्चर कम होते हुए इट वाज मोर ऑफ एन ओरिएंटेशन सेशन, जहां पे मैंने बहुत सारी बातें अपने बारे में, अपने क्लासेस के बारे में, बुक्स के बारे में, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताई थी. सो टुडे एक्चुअली इज द ऑफिशियल डे from which we are going to begin with this beautiful journey of CA Foundation Law. So as I told you all yesterday, you all only have to have a positive attitude and trust me, everything will be fine, okay? So yes. Thank you so much, Harshita. Thank you so much. Okay. Even if you have not watched yesterday's lecture, it is all okay, my dear friends. This lecture is still available on YouTube. After you are done with today's lecture, you can watch yesterday's lecture. कल के सेशन में पढ़ाई के हिसाब से हमने कुछ नहीं किया था. Yesterday's session was more of an orientation session, जहां पे आप लोगों ने मुझे जाना और मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी, मेरी बुक्स और मेरे अप्रोच के बारे में आपने बहुत सारी चीजें जानी है, so that from today you become more comfortable when I actually begin with the syllabus. और कल मैंने एक हल्की सी झलक आपको सिर्फ बताई थी हमारे सिलेबस के बारे में. सो वो एब्सेंट येस्टरडे मैं आप लोगों के लिए आज खास वापस से रिपीट करना चाहती हूं और मैं आपको बताना चाहती हूं हमारा ये जो पेपर नंबर 2 है, इसी पेपर नंबर 2 का नाम है बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. और इसी सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट पार्ट इज बिजनेस लॉ, जिसमें आपको 5 एक्ट्स पढ़ने हैं. कितने एक्ट्स पढ़ने हैं बेटा? आपको पढ़ने हैं 5 एक्ट्स. कौन से है ये पांचों भी एक्ट्स के नाम? द नेम ऑफ द 5 एक्ट्स आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट,
Limited Liability Partnership Act, and the last act that you have to study is the Companies Act 2013. साथ साथ में आयुष संभालो अपने आप को, मैंने कल के लेक्चर में ये चीज कही थी बट शायद से यू वर एब्सेंट येस्टरडे एंड दैट इज व्हाई यू डोंट नो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आयुष पूछ रहा है मैम क्या आप आपके नोट्स प्रोवाइड करोगे? तो यस आयुष, if you have enrolled for my classes, I will be providing you with my notes, so you do not have to pay additionally for my notes. Everything is inclusive. चाहे वो आपकी मेन बुक है, क्वेश्चन बैंक है, or even the chart book, everything is included in the cost of the lectures. Okay, so you do not have to buy the book separately. Don't worry. Okay. Till the time the lectures are on YouTube, we will be chatting over here only, because even it becomes difficult for me to keep on, moving from one screen to another, YouTube से Telegram से मेरे laptop पे. तो for a little convenience purpose, I will be turning on the chat of our YouTube lecture only, and obviously once we shift to our application, we will be forming a separate group wherein we can chat privately. Okay? चलो आ जाइए. अच्छा, अर्चित पूछ रहा है मैम गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे? तो सुनो मेरी बात, गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर अलोंग विद सजेस्टेड आंसर्स दिया जाएगा, और वहीं पे आपको क्या करना है, जब कभी भी मैं क्लास में अनाउंस करती हूँ टेस्ट कब होता है, उसी समय पे आपको टेस्ट देना होगा, एंड देन यू विल हैव टू कंपेयर योर आंसर पेपर विद द सजेस्टेड आंसर्स. ओके. Daily timing, okay, it was already told to you all yesterday, but because you're asking me the questions again, law lecture would be conducted at around 1:40, ठीक है? तो 1 बजे के आसपास, 1-1:15 के आसपास आपका अकाउंट्स का लेक्चर खत्म होता है, आफ्टर विच यू विल बी हैविंग अ हाफ एन आवर लंच आवर ब्रेक. ओके, आधा घंटा आपका लंच ब्रेक रहेगा, जिसके बाद आपका लॉ का सेशन शुरू हो जाएगा. सो अप्रोक्सीमेटली लॉ लेक्चर वुड बिगिन फ्रॉम अराउंड 1:30 to 1:45, डिपेंडिंग अपॉन अकाउंट्स का लेक्चर कब खत्म हुआ है, और अकाउंट्स का लेक्चर जैसे ही खत्म होता है आधे घंटे बाद आपका लॉ का लेक्चर शुरू हो जाएगा. ठीक है, आ जाइए. Thank you so much, Ishika. Thank you so much. Hello, Manu. Manu is saying that I'm in 10th standard. Hello, Manu. शालिनी संभालो अपने आपको, आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, बट एक बार हम सिलेबस की शुरुआत तो कर ले. एक बार ये तो पता चले आपको सिलेबस में है क्या. धीरे धीरे सब कुछ होने वाला है. कल शायद से मैंने बताया था, आप कल के लेक्चर में एब्सेंट है, that everything is going to be covered in the class, right from conceptual clarity to the revision, along with also the presentation part. Okay. चलो. Okay. Yesterday we had seen why law was necessary. तो हमने एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझा था. Now I want every one of you all to sit straight like good children, your eyes and ears open, and your only concentration should be on this subject of law. तो कल हमने ये चीज देखी थी, क्या देखा था कि कुछ समय पहले तक there were no traffic rules. Okay, तो जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे वॉकिंग ट्रैवल करता था, उस समय पे there was no traffic rules. Okay, तो ना ट्रैफिक लाइट्स होते थे, ना कोई रूल्स होता था. बट जैसे जैसे जमाना बदलते गया, व्हीकल्स इंट्रोड्यूस होने लग गए, एंड द एक्सीडेंट स्टार्टेड टू इंक्रीज. द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू थिंक दैट नाउ it is necessary to make a certain law which is relating to the traffic. सुमित, क्लास जो है वो कल से ही शुरू हुई थी, बट कल का वॉज अ लिटिल इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ लेक्चर, सो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर इवन फ्रॉम टुडे. और अगर आपको लग रहा है आपको कल का लेक्चर भी देखना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आज आप कल के सारे लेक्चर्स देख सकते हो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ द लेक्चर्स लेटर ऑन एज एन when you continue with the backup. Okay, Paras, you can inquire about the fees
from our website, that is www.swapnilpatni.com. अब बाकी के सारी चीजें जो है, please stop chatting now. You are only going to concentrate on law. बाकी आपके जो भी issues हो गए क्लास के बाद में resolve करूंगी. अभी आप थोड़ा बहुत पढ़ तो लो, है ना? बाकी सारी बातें हमारी होती जाएगी, ठीक है? सुमित प्लीज संभालो अपने आप को. What you can do is you can contact my staff. They will help you with all the questions you have. अभी आप प्लीज लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है? आ जाइए. तो देखो यहां पे क्या हुआ है. यहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक रूल्स बनाए गए और यही रूल बुक जो है, दिस रूल बुक वाज पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड दैट इज एन एक्ट was made, जिसको हम कहते हैं एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट. इसी के बारे में हमने कल पढ़ा था. बट लुक what we are learning in our syllabus, the first act is the Indian Contract Act 1872. The Indian Contract Act 1872. Okay. अब ऐसे केस में सवाल ये उठता है, why was the Indian Contract Act introduced? Why was the Indian Contract Act इंट्रोड्यूस्ड? एक सवाल है जो मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूं. आपके हिसाब से आज अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बजने आए हैं, क्या अभी तक आपने दोपहर की 2 बजे तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है? और आपके हिसाब से अभी तक आज के दिन भर में दोपहर तक, आज के दोपहर के 2 बजे तक आपके हिसाब से क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? क्या इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में दे सकते हो? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. तो किसी ने कहा है नो मैम, किसी ने कहा है यस मैम. तो क्या आप मुझे बता सकते हो जिन बच्चों ने कहा यस मैम हमने सुबह से लेकर अभी तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए, क्या आप मुझे वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जांपल्स बता सकते हो? आस्था कह रही है एवरीथिंग दैट वी डू इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो एवरीथिंग बहुत वेग हो जाएगा, कुछ मुझे स्पेसिफिक बताओ ना. तो जो लोग कह रहे हैं यस वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टुडे, क्या आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हो कि कैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? अच्छा, सिद्धांत कहता है मैम मैंने क्रिप्टो बाय किया है, सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई हैव एंटर्ड इनटू. ओके, उसके अलावा अच्छा, कोई दूसरा स्टूडेंट कह रहा है मैम आपने कल स्टेशनरी परचेस करने कहा था, तो मैं आज सुबह सुबह स्टेशनरी परचेस करके आया हूं. सो यस आई हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. वेरी गुड. सो यस प्रांजलि कह रही है मैंने स्टेशनरी परचेस किया था. वेरी गुड प्रांजलि. उसके अलावा आरव ने भी कहा आई हैव परचेज स्टेशनरी. ओके, सो यस दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव एंटर्ड इनटू. अच्छा, स्टेशनरी परचेज करने के अलावा और कुछ? अच्छा, अर्चित कह रहा है मैम मैंने कुछ कपड़े ड्राई क्लीनिंग को दिए हैं. परमजीत जो है वो कह रही है कि मैं शॉपिंग करने गई थी. वेरी गुड. उसके साथ साथ मैम कॉफी. ओके, मैंने जोमैटो से. वेरी गुड. साथ साथ में स्टेशनरी परचेस की है, ग्रोसरी परचेस की है, वेजिटेबल्स परचेस की है, फ्रूट्स बाय किए हैं. वेरी गुड. अलॉन्ग विद दैट आप लोगों ने हो सकता है आप लोग एक जगह से दूसरे जगह पे टैक्सी में ट्रैवल किए है, या रिक्शा में गए हो, या आपने बस लिया था, या आपने ऐसे कुछ कपड़ों की शॉपिंग की है, बुक्स बाय की है, ग्रोसरी बाय की है. सो यस, वेरी गुड. ऑल दीज आर नथिंग बट दीज आर एग्जाम्पल्स. पेमेंट ऑफ बिल. वेरी गुड. फोन का रिचार्ज करना, चार्जर खराब हो गया, चार्जर को हमने परचेस किया या रिपेयरिंग के लिए दिया, या मुझे मेरे लेक्चर्स के लिए माइक के लिए बैटरीज चाहिए तो आते आते मैंने कुछ बैटरीज परचेस किए. सो व्हाट is all this? All these are nothing but these are examples of contracts that you have entered into. कुछ Amazon से बाय करना, Zomato से कुछ फूड की डिलीवरी ऑर्डर करना, Domino's पे गार्लिक ब्रेड विद चीज आपने ऑर्डर किया है, या स्टेशनरी बाय करना, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देना, घड़ी रिपेयरिंग के लिए देना, मोबाइल का चार्जर खरीदना, बैटरीज खरीदना, टाटा स्काई का रिचार्ज करना. ऑल दीज आर नथिंग बट दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अगर आप देखोगे दिन भर की आपकी इतनी सारी एक्टिविटीज है विच आर रिजल्टिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू हैव एंटर्ड इनटू. तो ऑब्वियसली बात है, अगर
अगर दिन भर में आपने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए हैं, यू शुड ऑल्सो बी नोइंग व्हाट आर गोइंग टू बी द इफेक्ट्स ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होने वाले हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स के इफेक्ट्स, इन्हीं चीजों के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली अब जब आपने सीए की प्रोफेशनल दुनिया एंटर कर दी है, ऑब्वियस सी बात है, नाउ यू शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। आपके कौन से लॉज होते हैं जो आपके डेली रूटीन लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, what we have to do is we have to understand what is the Indian Contract Act talking about। और इसीलिए सबसे पहले मैं सिलेबस की शुरुआत करना चाहती हूं with the most practical act of your life, which is known as the Indian Contract Act 1872। But why was this act introduced? First of all, ये act आया क्यों? This act was introduced because, my dear friends, as you can see, there are thousands of contracts that you enter into in a day। आप सोचो, एक दिन भर में आपने ग्रोसरी की शॉपिंग की है, टाटा स्काई का रिचार्ज किया है, आपने स्टेशनरी खरीदी है, दिन भर में अगर आपने अनेक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, हर एक व्यक्ति कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता होगा देश भर में। और अगर कुछ लोग आपसे पैसे ले ले और सामान ना दे, मतलब ये गलत काम हो रहा है। और ऐसे ही फ्रॉड्स का होना शुरू हो गया, ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स का होना शुरू हो गया। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई जैसे जैसे कॉमर्स बढ़ने लग गया, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लग गया, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लग गया, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉड्स भी बढ़ने लग गए। और अब क्योंकि फ्रॉड्स बढ़ने लग गए, लोगों का कॉन्फिडेंस जो था कॉन्ट्रैक्ट्स में डिक्लाइन होने लग गया। नाउ इन ऑर्डर टू रीगेन दिस कॉन्फिडेंस, दिस डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, देयर वाज नेसेसरी फॉर अ लॉ टू बी इंट्रोड्यूस्ड। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड a law, and this law, in fact this act is known as the Indian Contract Act। क्या कहते हैं इस एक्ट को? क्या आप लोग मुझे एक बार वापस से बता सकते हो? तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में इस एक्ट का नाम बोलिए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम टुडे? द नेम ऑफ द एक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट इज इट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसी ने एग्जाम्पल दिया है, वेरी गुड मैम, वी हैव गिवन सैलरी टू आवर हेल्पर्स एट आवर हाउस। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमने आपके लेक्चर्स परचेज किए हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वी हैव एंटर्ड इनटू। एब्सोल्युटली यस, मेरे लेक्चर्स परचेज करना इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव एंटर्ड इनटू, जहां पे आपने मुझे फीस दी है और मैंने उसके रिटर्न में वादा किया है कि मैं आपको ये जो सब्जेक्ट है लॉ का, फाउंडेशन का, वो आपको पढ़ाऊंगी। Right guys, so yes, the name of the act that we are going to study is the Indian Contract Act 1872। तो अब देखो, एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। So this is the act that was introduced because the frauds were increasing in the country और पब्लिक का कॉन्फिडेंस अब घटने लग गया था। इसी डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए दिस वाज एन एक्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो, सुनो ना मेरी बात, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसी एक्ट के नाम को मैंने एक बड़े ही अनोखे तरीके से लिखा है। देखो, इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल और एक्ट का ए कैपिटल। इनफैक्ट हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है। हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है। तो क्या ये मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए लिखा है या ऐसे ही टाइम पास के लिए लिखा है? ओ या हाँ, ये तो मेरी सेकंड क्लास है, सो आई हैव टू इम्प्रेस यू नो, सो आई हैव टू गिव माय बेस्ट, और इसलिए मैंने ऐसी स्टाइल के लिए, शाइनिंग करने के लिए हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या मैंने कैपिटल में लिखा है? व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से ऐसे तरीके से मैंने क्यों ये पर्टिकुलर एक्ट के नाम को प्रेजेंट किया होगा? व्हाट डू यू फील? इज देयर सम रीजन और एवी मैंने लिख दिया बस ऐसे ही? हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है।
Why is that so? Why have I written the first letter of every word in capital? Indian का I capital, contract का C capital, act का A capital. Because my dear friends, सुनो मेरी बात एकदम अच्छे से, ये कानून की दुनिया ना, ये अपनी दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. जी हाँ, यू हैव हर्ड इट राइट. क्या कहा मैंने? कानून की दुनिया ये अपनी दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया ये खुद बसाता है. ऐसा हो सकता है a particular word could mean something in layman's language and it could mean totally something different in the world of law. And if you want to mean a particular word in a particular sense, sometimes it happens that the way you have presented the word is also a little different. Classic example are the names of particular acts. हर एक कानून का नाम जब कभी भी आप प्रेजेंट करते हो, हर एक कानून का जब कभी भी आप नाम प्रेजेंट करते हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर will always be in capital because we want to communicate to the world that this is a particular piece of legislature. जैसे कि act, ये word देख लो. हम लोग नॉर्मली भी act इस शब्द को यूज करते हैं. act इस शब्द को नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं. जैसे कि बहुत बार मम्मा से कभी कभार आप गुस्सा हो जाते हो या आपके दोस्तों से गुस्सा हो जाते हो, तो फिर आप ऐसे कहते हो, हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर. मतलब आप ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? एक्ट. हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर. एक्ट यहां पे आप मतलब रखना चाहते हो एक्शन. एक्ट, दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड एक्शन. एक्ट, ये जो वर्ड है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड एक्शन. बट नाउ हमने यहां पे ये जो एक्ट लिखा है, which has a capital A in it, this does not mean an action. This does not mean an action. यहां पे हम लोग क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं. एक्ट विथ अ स्मॉल ए, जो हम लोग यूजुअली डे टू डे वर्ल्ड में नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में यूज करते हैं, उसका मतलब होता है क्रिया, एक्शन. बट जब हमने ए लिखा है विथ अ कैपिटल ए, वी डू नॉट वांट टू मीन एक्शन. व्हाट वी मीन विथ अ कैपिटल ए इज दैट दिस इज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लेजिस्लेचर. अब ये एक कानून का हिस्सा जो है वो बन चुका है, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस है, सब सेक्शंस है, क्लॉजेस है और सब क्लॉजेस है. सो व्हाट वी मीन बाय द वर्ड एक्ट विच इज हैविंग अ कैपिटल ए is that it is a particular piece of legislature. Yes or no, guys? जैसे कि I would like to give you all a classic example of a word, और इस शब्द को आपने पहले सुना होगा. इसका नाम है minor. Don't write anything right now. I will be telling you all to write down and I will be giving you all time separately for the writing part. Okay? ओके तो आपने ये शब्द पहले सुना ही होगा, माइनर. क्या आपने ये शब्द सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड माइनर? ओके, तो मुझे हर्ष कहता है माइनर मतलब कोई बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज. ओम कहता है बिलो 18. अक्ष कहता है 17 years तक हमको माइनर कंसिडर किया जाता है. रिया कहती है एनी पर्सन बिलो 18. अनिकेत कहता है एनी बच्चा बिलो 18. संस्कार, हनी, जयेश, सब लोग कह रहे हैं कोई भी बच्चा who has not completed 18 years of age is considered as a minor. बट वही तो चीज है जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं. देखो, शब्द एक है माइनर, शब्द एक है माइनर, बट अब अलग अलग कानून में एक ही शब्द के अलग अलग मतलब है. जी हां, एक ही शब्द है बट इसी शब्द के मतलब अलग अलग कानून में अलग अलग है. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. सबसे पहली एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके,
मैं ICA लिख रही हूं, बट यू विल बी राइटिंग द फुल फॉर्म. करंटली डोंट राइट एनीथिंग. आई विल बी गिविंग यू ऑल टाइम फॉर द राइटिंग पार्ट सेपरेटली. राइट नाउ यू आर ओनली सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट. एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो आपके सिलेबस में भी है. वहां पे माइनर इस शब्द का रेफरेंस है, और वहां पे कहा गया है अ माइनर मीन्स अ बच्चा who has not completed 18 years of age. But in special cases जैसे कि special cases जैसे कि if a child is an orphan मतलब बच्चा अनाथ है, he will be considered as a minor till the time he has not completed 21 years of age. तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर इस शब्द को हमने ऐसे डिफाइन किया है, जहां पे हमने कहा है माइनर इज अ बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज एंड इन सर्टेन स्पेशल केसेस नॉट कंप्लीटेड 21 इयर्स ऑफ एज. बट इंडिया में ही देयर इज अनदर एक्ट विच इज रिलेटिंग टू द रूल्स ऑफ मैरिज. अब इस एक्ट में भी कहा गया है that a minor cannot get married. A minor cannot get married. तो अगर आपको शादी करनी है, you have to be a major. But now in this act, whether you are a minor or a major is depending upon your gender. तो yes, कहा गया है that girls can get married once they are 18 years of age, whereas boys can get married only once they are 21 years of age. तो अब आप कहोगे, मैम, why should only girls have all the fun? Well, the answer to this question is not a matter of fun. जब ये कानून बनाया गया था, इसका भी कुछ पर्पस था, एंड दैट इज वाई हमने कहा दैट माइनर्स कैन नॉट गेट मैरिड, एंड माइनर वी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ दैट पर्सन. बट वहीं पे एक तीसरा कानून है विच इज रिलेटिंग टू वोटिंग इन इंडिया, और ये कानून भी कहता है दैट अ माइनर कैन नॉट वोट. सो इफ यू वांट टू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ वोटिंग, you should have attained majority. So only after you have turned into a major, you are allowed to vote. But now ये कानून कहता है, चाहे आप लड़के हो या चाहे आप लड़की हो, now it does not really matter. Both can get the right to vote once they are 18 years of age. तो मैम, क्या कानून ये कहना चाहता है कि लड़के जो है वो देश तो चला लेंगे 18 की उम्र में, बट घर नहीं चला पाएंगे 18 की उम्र में, इसलिए शादी की उम्र उनकी 21 रखी है, जबकि वोटिंग की उम्र उनकी 18 रखी है? क्या ऐसा कुछ कानून हमें कहना चाहता है? जी नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है. वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, कानून की दुनिया ये अपनी दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. So every word has a different meaning in a different act. And why is that so? आपके मन में तो ये सवाल आ ही रहा होगा, ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों कि शब्द एक बट उसके मतलब जो है वो अनेक है? वो इसीलिए है बेटा, because the purpose, the scope and the objective of making these laws was different. Indian Contract Act बनाने का objective कुछ एक था, which was totally different from the objective of making the laws relating to marriage, which is totally different from the purpose of making the laws relating to voting. And according to the purpose, according to the objective, what we do is we define the words in their respective acts. Getting this or no, my dear friends? And that is why you can see शब्द एक but उसके मतलब अनेक. Depending upon which act you are studying, depending upon which act you are studying, उसी के हिसाब से आप उस शब्द के अंदर के मतलब को भी एनालाइज करोगे. यस और नो गाइज? यस. तो इसीलिए मैंने क्या किया यहां पे, एक्ट जब लिखा है मैंने एक्ट लिखा है विथ अ कैपिटल ए एंड नॉट with a small a. I have written it with a capital A because what I
I'm trying to say over here is that this is the Indian Contract Act, which is a particular piece of legislature. अब ये कानून बन चुका है और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है. Yes or no guys? Yes, very good. आगे ही मैंने कुछ लिखा है. Thank you so much Saksham. Thank you. मैंने कुछ यहां पे नंबर्स लिखे हैं. 1872. What is this 1872? Is this my lucky number? 1872 क्या है ये 1872? (1872) is nothing but it is the year, birth year of law, birth year of law, year when the law is passed. Year of incorporation, किसका incorporation बेटा? The year in which the act was formed. Okay, act was made in the year 1872. Very good. So I think most of you all know what this 1872 is about. So yes, 1872 is nothing but it is basically the year in which this act was made. और अगर मुझे आपको exact date बोलना हो, exact date, this act came into force, means basically this act became applicable from the 1st of September 1872. This act became applicable in the year 1872. And what is the exact date of the applicability of this act? Exact agar mujhe kehna ho, then this act started to become applicable from the 1st of September 1872. But if you realize, 1st September 1872 is the year in which the Britishers were ruling India. So yes, my dear friends, this is a law which was made by the Legislative Council, okay, of the Britishers. क्योंकि तब हमारा पार्लियामेंट तो नहीं था. पार्लियामेंट तो इंडिपेंडेंस मिलने के कुछ सालों बाद बना. अरे हाँ या ना बच्चों? तो तब तो हमारा कोई पार्लियामेंट था ही नहीं, because we were under the rule of the Britishers. That time, my dear friends, there was a council. Okay, a council means a body of persons who were making laws for us. और यही काउंसिल को कहा जाता था as the Imperial Legislative Council, जिसने ये particular act को बनाया है, and it is still applicable to us because it is a central act. So every act that is made when the Britishers were ruling and was passed by the Governor General, okay, the Governor General, जैसे आज के जमाने में प्रेसिडेंट होता है, उस समय पे जब ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे, उस समय पे इट यूज्ड टू बी द गवर्नर जनरल. हर वो कोई एक्ट जो गवर्नर जनरल ने पास की थी बिफोर इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, इनफैक्ट हर वो कोई कानून जो बना था इवन ड्यूरिंग द डोमिनियन लेजिस्लेचर. आप लोग जानते होंगे, सिविक्स आपने पढ़ा है. डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब ये वो शॉर्ट पीरियड है जहां पे इंडिया को ब्रिटिशर्स से रूल से तो मुक्ति मिल गई थी 1947, बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था. दैट इज द डोमिनियन लेजिस्लेचर. आफ्टर इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस एंड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, तब भी कुछ एक्ट्स बनाई गई थी. उन एक्ट्स को भी सेंट्रल एक्ट्स माना जाता है. और ऑब्वियसली वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, नाउ यू नो एवरी एक्ट इज पास्ड थ्रू द पार्लियामेंट. वो एक्ट को भी सेंट्रल एक्ट माना जाता है. तो जहां तक हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है, माय डियर फ्रेंड्स, दिस एक्ट इज स्टिल एप्लीकेबल टू अस दो इट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, एंड इट इज अ सेंट्रल एक्ट which you will have to follow even on today's date. But सवाल ये उठता है, ओके, किसी ने पूछा है मैम ये एक्ट बनी कब? अच्छा, आपके लिए बेटा जवाब है, वैसे दिस डेट इज नॉट रेलिवेंट, बट जस्ट बिकॉज यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू द आंसर. दिस एक्ट was made on the 25th of April 1872, but it came into enforcement, मतलब commence होना चालू हुई from the 1st of September 1872. तो ऐसा हो सकता है एक्ट बनी है एक दिन पे,
बट कमेंस हो रही है किसी और दिन पे. Okay, an Indian Contract Act is a classic example of this particular thing क्योंकि ये एक्ट रेडी होके बन चुकी थी 25 अप्रैल 1872 को, बट वो एनफोर्समेंट में आई. इट स्टार्टेड टू बिकम एप्लीकेबल from the 1st of September 1872. The date that is relevant for you is this date. तो अगर कोई भी आपसे ये सवाल पूछता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से एप्लीकेबल होना शुरू हुई है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट यू विल बी गिवन इज गोइंग टू बी द 1st of September 1872. Though this act was made when the Britishers ruled, but still I want to tell you all generally how acts are made. Okay, आज के जमाने में जब पार्लियामेंट बन चुका है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, हमारा संविधान रेडी है, आज के जमाने में अगर कोई कानून बनना है, कैसे कोई कानून बनता है, दैट I want to explain you all right now. And then we will be actually starting with section number 1 of the Indian Contract Act. How is an act made? Okay. Let us check it out. इतने सारे मैसेजेस आ रही है, आई एम नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड. संभालो आप अपने आप को. अच्छा, एनसी का क्या मतलब है? एनसी इज नॉट कंप्लीटेड. डोंट राइट दिस राइट नाउ, राइट इट लेटर और आई विल बी गिविंग यू ऑल टाइम टू राइट इट डाउन. ओके, NC is not completed 18 years of age. बट बेटा अभी आपको लिखना नहीं है वो चीज, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं. वो कॉन्सेप्ट अभी आप करंटली उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है पीपीटी? आई विल लेट यू ऑल नो बीसीआर की क्लासेस कब से शुरू होगी. बेटा संभालो अपने आप को. कितने मैसेजेस भेज रहे हो आप? क्या हो गया है आप लोगों को? समथिंग रॉन्ग विद द पीपीटीज. कंपनीज एक्ट की बेयर एक्ट है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन द पीपीटी. गिव मी अ मिनट. I don't know why is the PPT not opening. Something wrong with the laptop. I'll just switch off the laptop and switch it on. तब तक
Okay, I'll just tell you, wait. How is an act made? Let me tell you. सबसे पहले क्या होता है, अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी जो है एक ड्राफ्ट बनाती है. तो एक एग्जाम्पल पर्पस, बिकॉज यू ऑल्सो हैव कंपनीज एक्ट इन योर सिलेबस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अगर कंपनी से रिलेटेड लॉज बनाने हैं, व्हाट विल दे डू, दे विल फर्स्ट मेक अ ड्राफ्ट. दे विल फर्स्ट मेक अ ड्राफ्ट. तो अब या तो वो ये ड्राफ्ट स्यू मोटो मतलब खुद होके बना देंगे, या तो फिर व्हाट दे कैन ऑल्सो डू इज दे कैन ऑल्सो मेक दैट ड्राफ्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट. तो देखो, यस इट्स ओपनिंग, गुड. कंसर्न डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ड्राफ्ट बनाते हैं. सो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सबसे पहले क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक ड्राफ्ट बनाएगा जहां पे वो सारे रूल्स जॉट डाउन कर रहा है रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ कंपनीज. बट ये जो ड्राफ्ट है ऑटोमेटिकली एक्ट नहीं बन जाता है. ये जो ड्राफ्ट है ये ऑटोमेटिकली एक्ट नहीं बन जाता है. ये ड्राफ्ट जो है इट विल बी लेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो बेसिकली इट विल बी लेड इन बोथ द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा. Once it is passed in both the houses of the parliament, then it will be going to the President of India. So the current President of India, as you all know, is Mr. Ram Nath Kovind. अब ऐसे केस में उनके पास ये particular draft जाएगा, which has already been passed in both the houses of the parliament. And once he gives his consent, my dear friends, this bill or this draft फाइनली बिकम्स एन एक्ट. और एक्ट बनने के बाद भी मैं आपको बताती हूं क्या होता है. एक्ट बन तो गया बट आम जनता को तो इस बारे में नहीं पता है. तो आम जनता को इसके बारे में कैसे पता चलता है, व्हेन दिस एक्ट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. व्हाट इज एन ऑफिशियल गैजेट? इट इज नथिंग बट इट इज लाइक अ पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है. जैसे ही वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है, अब जनता को भी पता चल जाता है कि अब कंपनी से रिलेटेड कोई कानून बना है जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013. और उसी ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन में वो तारीख भी लिखी जाती है कब से ये कानून एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा. जैसे कि कंपनीज एक्ट जो है इट वाज मेड ओके ऑन द 29th of August 2013, and then it was published in the official gazette on the 30th of August 2013. बट जब वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था तब सिर्फ सेक्शन 1 कमेंस हुआ था, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सारे के सारे 470 सेक्शंस जो है वो एप्लीकेबल होना चालू हो गए. सो बेसिकली कंपनीज एक्ट गॉट एप्लीकेबल इन फेज्ड वाइज मैनर. तो वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स कानून सबसे पहले कैसे बनता है. फर्स्ट देयर इज अ रफ ड्राफ्ट which is being presented in both the houses of the parliament. Once it is presented in both the houses of the parliament, it goes to the president for his consent, and once the president gives his consent, this bill becomes an act. But वहां पे कहानी खत्म नहीं होती है. Then this act will be published in the official gazette, after which the public is aware about it and it comes into enforcement. मतलब coming into force, मतलब अब उस दिन के बाद वो applicable होना शुरू हो जाएगी. Okay, yes or no guys? I will be giving you all time to write it down, but did you all understand this particular thing till now कि एक्ट को कैसे बनाया जाता है? ड्राफ्ट बनाया जाता है, पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है. Once it is passed in the parliament, it will be given to the president for his consent, after which it becomes an act, and then it will be published in the official gazette.
किसी ने पूछा मैम अगर प्रेसिडेंट ने कंसेंट नहीं दिया तो वो एक्ट नहीं बनेगा, एंड देन यू वोंट हैव टू फॉलो इट. ओके, कोई पूछ रहा है मैम जब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है तब से लॉ एप्लीकेबल होता है? तो देखो, ऑफिशियल गैजेट में जब कभी भी कोई भी एक्ट पब्लिश होता है उसी नोटिफिकेशन में डेट लिखी होती है कि कब से वो कानून एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा. तो उस दिन से जो डेट लिखी गई है उस दिन से वो कानून एप्लीकेबल होगा. और अगर कोई भी डेट नहीं लिखी है, जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है उसी दिन से वो कानून एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या चाहती हूं, कल मैंने आप लोगों को आपके नोटबुक्स लाने कहा था. ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव गॉट योर नोटबुक्स. इसी नोटबुक्स को आपको ओपन करना है. राइट डाउन योर नेम ऑन द फर्स्ट पेज. सो यू विल राइट डाउन वट एवर योर नेम इज. जैसे कि सपोज आपका नाम जो है वो है नंदनी, तो आप लोग आपका नाम लिखोगे एंड देन यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस लॉ, और फिर आप मेरा नाम लिखोगे बाय सीए अंकिता मैम. एंड देन ऑन द फर्स्ट पेज, ओके, यू आर सपोज टू राइट डाउन द सिलेबस जो मैंने कल आपको ओरिएंटेशन में बताया था. तो अगर आपने कल का सेशन मिस किया है, प्लीज फर्स्ट पेज को ब्लैंक रख दीजिए एंड देन टर्न आउट टू द सेकंड पेज. और इसी सेकंड पेज पे अब आप लिखने वाले हो ये चीज कि कैसे कानून बनाया जाता है. सो राइट डाउन द हेडिंग, हाउ इज एन एक्ट मेड, हाउ इज एन एक्ट मेड, एंड देन you can write this. I'll just play a soft song for you all if you all wish to. Otherwise it's okay too. प्लीज लिख दीजिए आपके सेकंड पेज पे आपके नोटबुक है, हाउ इज एन एक्ट मेड, एंड प्लीज कॉपी दिस पीपीटी. ओके, आई एम गिविंग यू अ मिनट, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट फास्ट. ड्राफ्ट को कौन बनाता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के हेड्स ड्राफ्ट को बनाते हैं. तो सपोज इफ यू वांट टू मेक अ लॉ, यू वांट टू मेक एन एक्ट रिलेटिंग टू companies, it will be the Ministry of Corporate Affairs who will be making the draft, क्योंकि उस मिनिस्ट्री में उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं. तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है इंडिया में, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो इनकम टैक्स एक्ट बनाती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है. कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग उससे रिलेटेड एक्ट्स बनाते हैं. ठीक है, मिस्टर शेख, मुझे लगता है आपको चाय की जरूरत है. ये पूछ रहा है एक्ट का फुल फॉर्म क्या है. कसं व्हायचं? आई एम गुड विनीता, थैंक यू सो मच कि आपने अभी ज्वाइन किया है. वेब ऑफ फ्री कंसेंट जो है आपको नेक्स्ट वीक पढ़ाया जाएगा. इट्स अ फुल सेशन विच विल टेक अराउंड 1 hour. मैं अभी 1 मिनट में आपको नहीं बता सकती हूँ, अगर आपको फिर भी जानना ही है. फ्री कंसेंट मीन्स अ कंसेंट विच इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. ओके, MCA का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तनिष्क अपने लेक्चर अच्छे से नहीं सुना क्या? No, beta, you don't have to draw the drawings. You only have to write down draft, which is made by the head of the concerned ministry. जैसे कि Companies Act अगर बनानी है तो Ministry of Corporate Affairs है, which will be laid down in both the houses of the Parliament. फिर लोक सभा, राज्य सभा. Then it will be given to the President for his consent. After he gives his consent, it becomes an act. You don't have to draw it, okay? So I think you all are done with this writing part. Okay? So I am assuming you all are done with the writing part. अगर आप लोगों का लिख कर नहीं हुआ है, you can pause the lecture, do the writing part, and then continue with the lecture. Currently, I want you all to write down this.
डन? ओके, वेरी गुड. अब आपके तीसरे पेज पे आ जाइए, आपके नोटबुक के तीसरे पेज पे आ जाइए और हेडिंग दीजिए. अच्छा, एक बात सुनो ना. तीसरे पेज पे आ जाइए और हेडिंग दीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल. और ये चीज लिख दीजिए 1872. 1872 के वहां पे लिखिए 1 सितंबर 1872. ठीक है. और ये जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आपको लिखना होगा. और यहां पे ICA मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, NC मतलब नॉट कंप्लीटेड 18 years of age, नॉट कंप्लीटेड 21 years of age. किसी ने पूछा है, वैभव ने पूछा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस है. बेटा कल का लेक्चर आपने नहीं सुना क्या? कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको जवाब दे देती हूं. 75 सेक्शंस आप लोगों को फाउंडेशन में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. ठीक है. Yes, Parul. These lectures are for November 21 students as well as May 2022 students. Okay. NC का मतलब है not completed. Actually, you just write down the full form. Okay. Are you all done with the writing part? तो मुझे आगे बढ़ना है. So yes, you all are done with the writing part. Let me move ahead. Okay. अक्ष, मैंने कल भी आपके सवाल का जवाब दिया था और मैंने कुछ देर पहले भी अक्ष के सवाल का जवाब दिया था. अक्ष पूछ रहा है मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस है फाउंडेशन में. आई वांट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू गिव द आंसर टू अक्ष. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गिव योर आंसर अक्ष. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर. आप घर पे बैठ रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं होता है चलते फिरते खाते पीते सोते उठते आप लेक्चर देखते रहो. आपको फुल अटेंशन देना होगा जैसे कि आप लोग लाइव क्लास में ही हो. ठीक है. ओके. तो अब देखो, एज आई टोल्ड यू फ्रॉम येस्टरडे हम लोग यही चीज बता रहे हैं कि अ सेट ऑफ रूल्स इज एन एक्ट. अ सेट ऑफ रूल्स इज एन एक्ट. तो जब कभी भी एक्ट बनती है ना उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं और अब इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं सेक्शंस. क्या कहते हैं बोलो तो सब लोग एक साथ. हम कहते हैं सेक्शंस. इन्हीं रूल्स को लीगल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं एज सेक्शंस. सेक्शंस के अगर बच्चे होते हैं तो उसको कहते हैं सब सेक्शन. सब सेक्शन के बच्चों को कहते हैं क्लॉज और क्लॉज के बच्चों को कहते हैं सब क्लॉज. जैसे कि देखो बहुत बार अगर आपको लाइसेंस चाहिए, if you want to go and get a license, there were certain rules that you read, you understood, you accepted, you gave the test and then you got your license. अब हो सकता है एक रूल के सब रूल्स है, सब रूल्स के और सब रूल्स है और ये सब रूल्स के और सब रूल्स है. इसी को लीगल भाषा में हम लोग कहते हैं एज सेक्शंस. इसी को लीगल भाषा में हम लोग कहते हैं एज सेक्शंस. तो कोई भी एक्ट जब कभी भी बनती है, कोई भी एक्ट
जब कभी भी बनती है, एक्ट इज मेड अप ऑफ सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस एज वेल एज सब क्लॉजेस. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, वेट आई विल शो यू. मैंने आपको कल ही प्रॉमिस किया है कि मेरा सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल, बट अप्रोच होगा एकदम प्रैक्टिकल. आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा द बेयर एक्ट, Companies Act 2013. So this is basically the bare act which is actually being passed under Parliament of the Companies Act 2013. यहां से सेक्शन नंबर 1 से इस कानून की शुरुआत होती है. I told you there are around 470 sections in this act. आपको नजर आ रहा है 470 sections in this particular act. और देखो ये यहां से एक्ट की शुरुआत होती है. देखो जब कभी भी मैंने कानून को बनाना शुरू किया है, ऐसा नहीं होता है जो मैंने शुरू किया है बस एंड में ही मैं खत्म करूंगी. ऑब्वियसली आई एम राइटिंग अ सेट ऑफ रूल्स. देयर शुड बी सम मेथड, देयर शुड बी सम वे ऑफ प्रेजेंटिंग द रूल्स टू द इंडियन सिटीजन्स. और उसी के लिए मैं उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करती हूं. तो उन्हीं को पॉइंट्स ना कहते हुए लीगल भाषा में हम उनको सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉज एंड सब क्लॉज कहते हैं. हां, तो अगर आप देखते हो, आई वांट टू रिमूव वन सेक्शन रैंडमली, कोई भी सेक्शन में उठा रही हूं और हम देखेंगे ये सेक्शन में. चलो यहां पे आ जाते हैं. एक सेक्शन जो आपको आपके सिलेबस में भी है कंपनीज एक्ट में. यहां पे आपको आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा सेक्शन, यहां पे आपको नजर आ रहा है. देखो ये पॉइंट 8 लिखा हुआ है. पॉइंट 8, व्हाट इज दिस पॉइंट 8? दिस पॉइंट 8 इज नथिंग बट इट इज सेक्शन 8. सेक्शन 8, सेक्शन 8 जिसका हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. जो एनपीओज होती है ना, विच आर बीन इनकॉर्पोरेटेड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह, ऐसे एंटिटीज के बारे में ये सेक्शन नंबर 8 बात करता है. तो देखो ना यहां पे क्या लिखा है, 8 मतलब दिस इज सेक्शन नंबर 8. अब देखो ये 8 के बहुत सारे बच्चे हैं. तो अगर आप देखोगे 8 का बच्चा, देखो ये 1 है. 8 का बच्चा ये 1 है. फिर यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 8 का बच्चा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो ये 8 1 मतलब सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1. फिर देखो 8 2 मतलब क्या है, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 2. फिर ये 8 3 मतलब क्या, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 3. अब अगर आप पहले वाले पॉइंट में देखोगे, पहले वाले पॉइंट में सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 और फिर आगे ए बी सी, क्या तुम्हें दिख रहा है, ए बी एंड सी, मतलब यहां पे क्या है, दिस इज सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. और अगर उसके भी बच्चे होते तो फिर वो हो जाता सब क्लॉज. सो बेसिकली देयर इज अ हायरार्की ऑफ रीडिंग दिस सेट ऑफ रूल्स. सेट ऑफ रूल्स मतलब लीगली एक्ट हम कहते हैं उसको. तो यही जो हायरार्की है वो कैसी है हायरार्की, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज. तो अगर कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट, what do you mean by an act, you will say act is equal to section plus subsection plus clause plus subclause. तो मैं चाहती हूं जहां पे आपने आपके नोटबुक में ये चीज लिखी है ना, हाउ इज एन एक्ट मेड, उसी के नीचे जगह होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगले पेज पे आपको एक्ट की शुरुआत करनी है, उसी के नीचे जगह होगी. तो वहां पे मैं चाहती हूं आप ये वाला पीपीटी लिख दीजिए. ओके राहुल कह रहा है मैम आई स्कोर्ड 91 मार्क्स इन जैन एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच योर pen drive, I taken your pen drive and your wonderful chart book. Thank you so much Rahul and congratulations. Everyone please clap hands for Rahul. He has scored 91 in the January examination. Woohoo! क्या बात है.
वेरी गुड राहुल, वेल डन. सुराना प्लीज थोड़ा सा वेट कर सकते हो क्या? डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट. मैं आ रही हूं, अभी तक उस पर आई नहीं हूं. So are you all done with the writing part? If you all are done with the writing part, please give me a thumbs up so that I can move ahead. Come on, jaldi, jaldi. Are you all done with it? Thank you so much, Urupa. Thank you. So law is equal to, oh, मैंने कौन सा पीपीटी ला लिया है, आपने बोला भी नहीं. एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. आपने बोला भी नहीं मुझे कि मैंने गलत पीपीटी डिस्प्ले किया है. आई वॉज चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन. So act is equal to section plus subsection plus clause and subclause. So don't worry, कल से जब हम पढ़ना चालू करेंगे you will realize what sections are, subsections are, clauses and subclauses are. Okay? अच्छा, आपने खुद लिख लिया, वंडरफुल, अच्छा है, फिर बहुत अच्छी चीज है अगर आपने खुद लिखा है तो, दैट्स ग्रेट. अच्छा, आप क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बता सकते हो मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं? एम आई गोइंग टू टीच ऑल एक्ट और एम आई गोइंग टू टीच यू ऑल लॉ? व्हाट एम आई गोइंग टू टीच यू ऑल? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट? इज इट बिजनेस एक्ट और इज इट बिजनेस लॉ? हु एम आई? आई एम योर टीचर फॉर टीचिंग यू एक्ट्स और टीचिंग यू लॉ. कम ऑन, टेल मी. So yes, I'm going to teach you all law, I'm going to teach you all business law, I'm going to teach you all business law. तो मैम, ओ मैम, लॉ और एक्ट अलग अलग है या सेम है? लॉ ही तो एक्ट होता है ना और एक्ट ही तो लॉ होता है ना. जी नहीं बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड लॉ एंड द वर्ड एक्ट. इनफैक्ट आई कैन से दैट लॉ में एक्ट आती है, बट एक्ट के साथ साथ दूसरी चीजें भी लॉ में कवर होती है. व्हाट आई विल बी टीचिंग यू ऑल इन योर करिकुलम इज लॉ. और जो मैं कहती हूं कि मैं आपको लॉ पढ़ाने वाली हूं, मतलब मेरी क्या जिम्मेदारी आ जाती है? सबसे पहले आई विल बी टीचिंग यू द एक्ट. तो मैं आपको 75 सेक्शंस पढ़ाने वाली हूं ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंक्लूडिंग द सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज. ओके, बट सिर्फ एक्ट पढ़ाने से लॉ की आइडिया नहीं आएगी आपको. एक्ट के साथ साथ होते हैं उसके कुछ रूल्स जो नोटिफाई होते हैं. वो रूल्स भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी. रूल्स के साथ साथ लेट मी टेल यू, बहुत बार ऐसा होता है कानून बनाने वाले तो कानून बना देते हैं और उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. बट लेटर ऑन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच पीपल आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट. या तो किसी एक ने एक तरीके से इंटरप्रेट किया है और किसी दूसरे ने उसे दूसरी तरीके से इंटरप्रेट किया है, जिसके वजह से लोगों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं एंड दे गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और वहां पे जज इनके केस को एनालाइज करके लॉ को मद्देनजर रखते हुए कुछ डिसीजंस देता है. और हम कहते हैं ये जो जुडिशियल डिसीजंस है, दे ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ आवर लॉ. तो जुडिशियल डिसीजन, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्ट बट दे फॉर्म अ लॉ. तो अगर किसी कोर्ट ने किसी चीज के ऊपर कुछ डिसीजन दिया है, okay my dear friends, now it becomes a landmark decision which will be followed for every similar case. So that is why even case laws form a part of our syllabus. तो जी हाँ, हमारे सिलेबस में हम बहुत सारे केस लॉस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चिनैया वर्सेस रमैया, लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड,
Salmon versus Salmon and Company Limited, Lee versus Lee Air Farming Limited, Guzar versus the Commissioner of Income Tax, ऐसे करके बहुत सारे केस लॉस जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं in our syllabus, because what we are going to learn is not an act, but basically it is law. Law is a wider term as compared to the word act. Law is a wider term as compared to the word act. जिसके वजह से my dear friends, जब मैं कहती हूं law, तो law में आते हैं act plus rules and plus case laws. तो ये भी प्लीज लिख दीजिए और उसी के बाद हम लोग सेशन को कंक्लूड करेंगे. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन ओवर देयर ओनली ऑन द सेकेंड पेज ऑफ योर नोटबुक, जहां पे सबसे ऊपर आपने लिखा था एक्ट को कैसे बनाया जाता है, फिर आपने लिखा एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज, और अब नीचे लिखिए लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉस. सो आई एल डन राइटिंग दिस. So yes, so I think you all are done with the writing part. किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स. बेसिकली रूल्स में क्या होता है, हम एक मैकेनिज्म या एक प्रोसेस जो होता है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं. तो जैसे कि अगर से फॉर सिंपल एग्जांपल पर्पस कंपनीज एक्ट में लिखा है शेयर्स कुड बी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स कुड बी ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. तो अब उसी से रिलेटेड रूल्स हो गए कि अगर कंपनी को शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करने हैं, कौन से सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, तो वो रूल्स में लिखा होता है. सो बेसिकली रूल्स आर नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ मैकेनिज्म और प्रोसेस और अ टेक्निक विच इज सपोर्टिंग द एक्चुअल एक्ट. ओके, तो नॉर्म्स हम कह सकते हैं. ठीक है, so yes, you all are done, everyone is done with the writing part. बस 2 मिनटों में जो कुछ भी आज मैंने किया है उसे मैं समराइज करना चाहती हूं, और फिर देखो आप, इट्स बीन मोर देन 1 आवर, समझ में भी नहीं आया कि कब समय खत्म हो चुका और अलविदा कहने का समय भी आ गया. बट इट वॉज फन टीचिंग यू ऑल दीज बेसिक थिंग्स. चलो आ जाइए. केस लॉ क्या होता है बेटा, डोंट वरी. रूल्स क्या होता है, केस लॉ क्या होता है, उससे आप एक्चुअली रूबरू होने वाले हो. अभी तक मैंने सेक्शन नंबर 1 की भी शुरुआत नहीं की है, उसकी मैं कल से शुरुआत करने वाली हूं. सो जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस. मुझे लगता है लॉ इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू यू ऑल, सो यू हैव टू कीप योर पेशेंस. और अगर कुछ डाउट आ भी रहा है, यू हैव टू स्टॉप द डाउट देयर एंड देयर इटसेल्फ. ओके, बिकॉज it's a totally new subject to you all, so it's going to take a week for you all to get comfortable with the subject. And I'm 100% sure जैसे 1 हफ्ता 10 दिन हो जाएगा, you will automatically get the answers of the question that were, you know, irritating you in your mind. So just hold off those questions. You will get the answers to your questions automatically as the sessions pass by. Don't worry, मुझ पे भरोसा रखो. ठीक है पारस? चलो, पहली बात तो मुझे बताओ, लॉ और एक्ट दोनों भी सेम है या अलग अलग है? लॉ और एक्ट बताइए मुझे, दोनों भी सेम है या अलग अलग है? बोलो, सेम या अलग अलग? यस, वेरी गुड, दोनों भी अलग अलग होते हैं. विच इज द ब्रॉडर टर्म? लॉ ब्रॉडर है या एक्ट ब्रॉडर है? बोलो, लॉ ब्रॉडर है या एक्ट ब्रॉडर है? विच इज द ब्रॉडर टर्म, wider term? Which is the broader term? Bolo. So yes, law is the broader term. Very good. केशव ने सबसे पहले सही जवाब दिया है. केशव, उसके बाद दिया अक्षत, राजीव, very good. So yes, law is the broader term. And law include acts plus rules plus case laws.
एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। जिस एक्ट की हम लोग कल से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या आप लोग मुझे इस एक्ट का नाम बता सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो? एंड ये एक्ट कब से फोर्स में आई है? दोनों भी सवालों का जवाब आप लोगों से चाहिए। चलो बोलिए, लास्ट सवाल है आज का। जो एक्ट हम आपको कल से पढ़ाने वाले हैं, इसी एक्ट का नाम क्या है और यही एक्ट कब से एनफोर्समेंट में आई है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? कम ऑन, बोलो। सो यस, लॉ इज द ब्रॉडर टर्म एंड एक्ट इज द नैरोअर टर्म। आप लोग अभी तक उसी सवाल पे हो, क्या ब्रॉडर है और क्या नैरोअर है? क्या आप मुझे वो एक्ट का नाम बता सकते हो जो हम कल से पढ़ने वाले हैं? बोलो। द नेम ऑफ द एक्ट इज the Indian Contract Act 1872 and it came into enforcement from the 1st of September 1872. So yes, ऋतिक ने एकदम सही जवाब दिया है सबसे पहले। वेरी गुड एंड दैट्स वंडरफुल। तो मुझे लगता है वक्त भी यही कह रहा है कि अलविदा कहने का समय आ चुका है, बट डोंट वरी, कल हम लोग मिलेंगे क्लास के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। See you all tomorrow. Thank you so much for your patient listening. It was wonderful teaching you all. Bye bye. Take care, guys.